تصدیق کرنے کے لیے. اور اگر آپ ایک بھی نقطہ اپنی شریعت کا چھوڑتے ہیں تو آپ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. Even if you break one jot or tittle, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ, peace be upon him. ایک بھی چیز جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہے اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو جنت میں جائیں گے نہیں. وہ تو سینٹ پال اور باقی لوگ آئے اور پھر بدلنے کی کوشش کی. Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, not of Saint Paul. ہمیں ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا, سینٹ پال کا نہیں. عیسائیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں, پولینٹی کے بارے میں نہیں. سسٹر, اگر آپ کو اچھا عیسائی بننا ہے تو آپ کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. اگر کھائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. اس کے پہلے آپ کو عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی. ماننا چاہیے آخری پیغمبر میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو اچھی بات سمجھائیں گے. You have to believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا, خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے, عظیم پیغمبر تھے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے, کوئی بھی نام سے پکارو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں. اور یہ الفاظ اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں, اچھے نام ہیں, کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں. اور قرآن مجید میں 99 صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, 99 نام ہیں. مثال کے طور پہ الرحمن, الرحیم, الحکیم, الخالق, 99. اور سب سے اونچا اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ, اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں. ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ, کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز, پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں, کوئی جمع نہیں. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کو ڈی ای ایس ایس جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس, فیمیل گاڈ, مؤنث خدا. اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں, نہ مؤنث نہیں سکتا. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا, اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر, اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا, اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی, دیوتا, خدا, خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کے کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے, کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ, گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15, چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34, اور گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 46, کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی. ہیبرو ورژن ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی. اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me, اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me, یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا ہو جاتا ہے اللہ اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑواں زبان, سسٹر لینگویج. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ, عربی میں کہتے ہیں اللہ, ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے
आप जब कोई भी बाइबल का तर्जुमा पढ़ते, चाहे अंग्रेजी में हो, हिंदी में, उर्दू में हो, आप सिर्फ अंग्रेजी अल्फाज पाएंगे अंग्रेजी बाइबल में। लेकिन ये दो वर्सेस गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 में वर्स नंबर 46 एंड गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34, इसका ओरिजिनल हिब्रू में जिक्र है। एल्ला एल्ला लम्हा सबक्तनी आप सारे बाइबल के तर्जुमे में पाएंगे, चाहे वो अंग्रेजी बाइबल हो, हिंदी बाइबल हो, उर्दू हो, मराठी हो, एल्ला एल्ला लम्हा सबक्तनी मौजूद है। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करते ओ गॉड व्हाई दू फॉरसेकन मी, या ये खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। तो कोई भी बाइबल आप उठाएंगे आपको अल्लाह का लफ्ज उसमें पाएंगे। वरना अल्लाह ताला फरमाते हैं आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो, लेकिन अच्छे नामों में से होना चाहिए, जिस नाम से अल्लाह ताला खुद पसंद करते हैं अपने आप को बुलाओ। ये था पहला रुकन। दूसरा रुकन इस्लाम का है सलाह। सलाह का तर्जुमा अक्सर अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रे। टू प्रे मीन्स टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प। टू प्रे मतलब मदद मांगना। हम सलाह में सिर्फ मदद नहीं मांगते, मदद के अलावा अल्लाह की तारीफ भी करते हैं और अल्लाह से हिदायत भी पाते हैं। सलाह का तर्जुमा टू प्रे या मदद मांगना सही नहीं। मैं पसंद करता हूं सलाह को कहना अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, या उर्दू में कहूंगा नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। क्योंकि मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद पढ़ेंगे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, जिसमें फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लाम, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। इसमें हम हिदायत पा रहे हैं। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फाल मत खोलो। हो सकता है मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 तिलावत करते हैं, जिसमें लिखा है रिश्वत मत लो। यहाँ में हिदायत मिल रही है कि रिश्वत देना हराम है। इसीलिए मैं पसंद करता हूँ सलाह का तर्जुमा करने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45 में इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, आप तिलावत करो जो अल्लाह ने नाज़िल किया और सलाह कायम करो, क्योंकि सलाह आपको बुराई से रोकती है और बेशर्मी से रोकती है। लेकिन जब आप आज़ान सुनेंगे और आप सलाह की तरफ जा रहे हैं और कोई आपसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, आप अगर कहेंगे आई एम गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं जहन को बदलने जा रहा हूँ या मैं जहन की धुलाई करने जा रहा हूँ, अजीब लगता है। तो अंग्रेजी में अगर कोई कहता है कि आई एम गोइंग फॉर प्रेयर्स, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि सलाह का सही तर्जुमा प्रेयर नहीं है, नमाज भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। सलाह के सही मानिए सलाह, जिस तरीके से अल्लाह के सही तर्जुमा गॉड या खुदा नहीं है। लेकिन जब हम गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं, उसको इस्लाम समझा रहे हैं और अल्लाह के बदले वर्ड गॉड या खुदा इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं। इसी तरीके से टू प्रे इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन फॉर सलाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कम से कम आपको हर रोज 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए। और इसका जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 और सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 31 में। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छे जिस्म के लिए 3 बार खाना जरूरी है, उसी तरीके से अच्छे ईमान के लिए, अच्छे सोल के लिए 5 टाइम 5 वक्त सलाह जरूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, जितने अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 से 12 में अल्लाह ताला फरमाते ए मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम अंगार की तरफ जाते हैं तो एक आवाज आती है, ए मूसा मैं तेरा रब हूँ, आप जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह पाक है, तुआ की वादी है, आप अपने जूते निकालो। इसका जिक्र बाइबल में भी लिखा हुआ है, बाइबल में बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में गॉड सेड टू मोसेस पीस बी अपॉन हिम, डू नॉट द हिदर, पुट ऑफ thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground। आप नजदीक मत आओ, आप अपने पैरों से अपनी जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं वो पाक जमीन है। इसका जिक्र फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, डू नॉट द हिदर, पुट ऑफ thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground। नजदीक मत आओ, अपनी जूतियां निकालो अपने पैरों में से, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं वो एक पाक जमीन है। इसीलिए सलाह के पहले हम अपने जूते निकालते हैं। लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
940, हदीस नंबर 653, 653। अमर इब्न शुएब फरमाते, मेरे पिता ने कहा कि मेरे दादा ने कहा कि उनने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए जूते में और जूते के बगैर, इसीलिए हम जूते में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जूते के बगैर भी पढ़ सकते हैं। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें नाज़िल की, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। पिछली जितनी भी आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद के आज के वो किताबें मंसूख हो गई, वो खत्म हो गई, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। मिसाल के तौर पर जैसे आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडो 7, विंडो 8, और अभी तक जो अपडेट आया है विंडो 11, तो अभी आजकल के ज़माने में अगर आप कहोगे आप विंडो 9 इस्तेमाल करो या XP इस्तेमाल करो, तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो अब आउटडेट हो गए, उसका कोई ज़माना नहीं रहा। लिहाजा कुरान मजीद की मिसाल है कि वो उसके आने से आपको एक मुकम्मल तारीख हयात मिल गया, तो पिछली आसमानी किताबें हैं, अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। दूसरी बात ये कि जितनी भी पिछली आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर और इंजील, तकरीब हुई लोगों ने अपनी तरफ से उसके लिए शामिल की, और रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि वो तमाम किताबें अपनी असली हालत से हट कर एक नई किताब बन गई जो इंसानों के लिखी हुई है। लिहाजा उसको आप जो है ना आप एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो ईसाई लोग हैं वो बाइबल को अपना हकीकी किताब मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं, ये बाइबल का लिखा है और इस बाइबल में ऐसे ऐसे चीज़ें जिक्र है जिनका आप जिक्र भी नहीं कर सकते। लिहाजा आप बाइबल है उसकी बहुत सारे किस्में भी हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तो जैसे वो गरीब नाम दिए गए हैं उनको। तो ये बाइबल जो है ना ये हमारे लिए राय शायद नहीं ना ही ये ईसाइयों के। अगर आज के ज़माने में आपको राय मिल चाहिए और मुकम्मल तरह से हयात चाहिए तो आपको कुरान मजीद की तरफ आना होगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं दीन अल्लाह इस्लाम, इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं या नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो भाइयों दोस्तों, कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ने की जिम्मे है, इसलिए कुरान में क़यामत का कोई तब्दीली नहीं आई। और इसी तरह तंजील के बारे में जो समझ हुआ है तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि सूअर का गोश्त मेरे को हलाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो मतअल्लिक़ुल मैदा तो वद्दम व लहमुल खिंज़ीर, कुरान में कहा है कि खिंज़ीर और इसी तरह ऊँट और मुर्दा ये आप पर हराम है। तो जो चीज़ अल्लाह ने हराम की हो लोगों ने अपनी तरफ से ईसाई लोग अपनी तरफ से कुछ अल्फाज पेश कर दिया बाइबल में, तो इसलिए अब सबको मेरा मशवरा है कि आप बाइबल की तरफ हट जाइए। आप आजकल के ज़माने में दुनिया भर में बेनज़ीर कुरान मजीद का मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई दीन इस्लाम एक सलामती वाला दीन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।